Okay, welcome back students to Shiksha Science Academy. Today I am present in front of you all with a new look, isn't it? I hope you will enjoy my new look. Okay, without wasting much time, I would like to start a new topic that is of standard 12th, electric potential. As we were discussing the first chapter of electrostatic only, the topic that I have written today is very important. That is what electrostatic potential. So let's start. What is electrostatic potential? Potential means word that you know, that to ability to do something. Okay. Suppose if I put a charge somewhere. Suppose there is a source charge Q. There is a source charge Q somewhere. Wherever the charge is, you know that there must be its electric field over there. Then suppose this is the electric field to a test charge. So this is a source charge and this is a test charge, isn't it? So it will have its electric field over here. It will have electric field over here, over here, over here, here, and here. According to the formula that you know about the electric field intensity, you know that 1 upon 4 pi epsilon Q upon R square. Means it follows the inverse square law. Means as the distance gets increased, the electric field intensity gets what? Decreased. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है. Isn't it? Means if any source charge wants to come into the electric field of the source charge, then it must has to apply some force, because ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है. इट इज रिपेलिंग दिस इन दिस डायरेक्शन and it is trying to attract it into this repel, and it wants to get inside it, so it must has to do some work, and work done is equal to what? Force into displacement. If this test charge wants to get inside, suppose for going over here, it has to apply work done of 10 joule, isn't it? And if you will apply that test charge will apply more force, and it will reach over here 10 joule, here 30 joule, here 40 joule, here 50 joule, isn't it? So that is the amount of work then that is needed to be done to reach those potentials. Understood? But here we are talking about the potential means ability. Means ability. These are what? These are not the abilities. These are the work done. जो work आपने कर लिया, the work that you have done. Then what is the potential? The potential is what? This 10 volt, 20 volt, 30 volt, 40 volt, 50 volt means what? ये वो स्पेसिफाई कर रहा है कि आप अगर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पर आ गए तब आपको कितना एनर्जी खर्च करना होगा? इतना. अगर आप यहां से यहां तक आप पहुंच जाते हैं तो आपके पास कितना पोटेंशियल रहेगा? 10 वोल्ट. तो आप यहां पे पहुंचने में कितना एनर्जी खर्च करोगे? दैट इज व्हाट? 10 जूल. अब समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन. ठीक है, कि आप एनर्जी कितना खर्च कर रहे हैं और उसका पोटेंशियल कितना है. इसको कॉमन वर्ड्स में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो बोलते हैं अरे भाई यहाँ पे इंडिया में उतना पोटेंशियल नहीं टीचर्स का. गो टू अबू धाबी और यू विल गो टू यूएसए, वहां पे टीचर्स का बहुत पोटेंशियल है, isn't it? तो दैट इज व्हाट स्पेसिफिकेशन की किसी एक एरिया पे उसका स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो दैट इज व्हाट पोटेंशियल इज ऑल अबाउट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पे याद रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही हो सकता है जहां पे क्या होगा? चार्ज होगा. तो चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. बिकॉज़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने का तो ये मूव करना इसके लिए इजी हो जाएगा. समझते हैं. इसके एक और एग्जांपल से तब आपको बेटर समझ में आएगा. सब टेक एन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग आप ले लें, ठीक है, और उस स्प्रिंग पे आपको लिखा गया है कि अगर इसको आप इतना प्रेस करेंगे तो ये 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेसिफाई करेगा, isn't it?
जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये 20 वोल्ट करेगा, यहाँ से यहाँ पे ये 30 वोल्ट, यहाँ से यहाँ पे 40 वोल्ट। तो ये स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे क्या अप्लाई करना होगा, फोर्स। आपको उसको प्रेस करना होगा, दबाना होगा। तो जब आप इसको यहाँ से इतना प्रेस करके दबाएंगे, मतलब आपने क्या करा, वर्क डन करा, यू डिड वर्क डन। तो अब आपने 10 वोल्ट यूज करा नहीं, आपने क्या यूज करा, 10 जूल, तो आपने वर्क डन करा। ये तो स्पेसिफिकेशन, दिस इज व्हाट स्पेसिफिकेशन। सो सिमिलरली जब आप 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे मूव करेंगे तो आपका स्पेसिफिकेशन कितना होगा, 20 वोल्ट, लेकिन आपका एनर्जी खर्च कितना हो जाएगा, 20 जूल, बिकॉज आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट, अब जब यहां से यहां मूव करेंगे तो स्पेसिफिकेशन 40 वोल्ट होगा, लेकिन जो आप एनर्जी स्पेंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। सिमिलर है भाई कि यहां से यहां पे इसको प्रेस करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी या फिर यहां से यहां प्रेस करने में, यहां से यहां, बिकॉज़ यहां से लगने वाला जो, मान लीजिए अगर इतना बड़ा अगर आपका स्प्रिंग है तो यहां से आराम से इसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां से यहां प्रेस करना होता तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना होता। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो ये वो चीज है, वो हम आपको जो कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज़ आप जितना क्लोज आने की कोशिश करेंगे चार्ज का, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होते जाएगा। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? यस। सो लेट्स रब इट अगेन एंड डस्टर, आई एम नॉट गेटिंग द डस्टर। आई गेस उस रूम में है, आप लेकर आए उस रूम से। तब तक हम यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर कोई भी क्यू चार्ज अगर आप यहाँ पे पुट ऑन करके रखते हैं, सपोज यू आर हैविंग अ टेस्ट चार्ज, सो यहाँ से ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और आप क्यू चार्ज को पुट करते हैं, इसको कैपिटल लिखते हैं, पता है ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी व्हाट, QE। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू QE, इस डायरेक्शन में, ड्यू टू व्हाट, रिपेलिंग नेचर, बिकॉज़ दोनों सेम चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है एक टेस्ट चार्ज है। लेकिन इसका काम क्या है, इट वांट्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। दैट विल बी F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस QE, ये इसका फोर्स हो जाएगा। तो ये वर्क डन कितना करेगा, सपोज ये यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए दैट टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, r। ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, r। तो ये स्मॉल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, dr। देन व्हाट यू विल राइट, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे यहां से यहां कितना वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन हुआ, तो स्मॉल वर्क डन के लिए विल राइट व्हाट, dw, दैट इज minus QE into what, dr, that you will get. So you will get what, dw by q को इधर लेकर आएंगे and you will get minus E dr। इस माइनस को भी इधर ही ले, you will get what, E dr। तो एक फॉर्मूला you will get, because work done per unit charge will give you what, potential difference। So minus E dr। Have you got this? Understood what I said? आपने जो फोर्स अप्लाई करा ऑपोजिट डायरेक्शन में और बस आपने फार्मूला पुट करा वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड नथिंग एल्स यू डिड ओवर हियर, ठीक है। नाउ यहां से आपको क्या और पता चला, यहां से व्हेन इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जब ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, FBD अगर ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट दिस कि दिस इज व्हाट, थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा एंड दिस विल बिकम व्हाट, cos थीटा, isn't it? So here हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ये वाला पार्ट है, दैट इज dr। तो ये वाला पार्ट इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस विल बिकम व्हाट, dr cos थीटा। सो हियर याद रहे कि इसके साथ छुपा हुआ cos थीटा है, बिकॉज़ ये इसका डॉट फॉर्म पे है, you write E dr cos theta where theta is equal to what, 0 degree, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। so you write E dr, याद रहे ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है and that is what डॉट प्रोडक्ट। तो here यहाँ पे cos थीटा छुपा हुआ है क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1। now I guess you have got this। नाउ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है,
what this negative sign indicates? Any idea? बताइए. dr किधर है? dr is in this direction. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो what you write that the negative sign indicates that the direction of dr is opposite to the direction of E electric. उसको लिख लेते हैं. Here negative sign indicates that the direction of dr is opposite to the direction of E, that is what? Electric field. Understood? ये कैसा क्वांटिटी होगा? It is what? A scalar quantity. Electric potential difference is a scalar quantity. It is a scalar quantity. लिख लेंगे इसे कहीं पे. ओके. चलिए यहां तक आप लोग लिखें एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, electric field due to a point charge. Suppose there is a test charge over here. Again, there is a test charge over here, and at a distance there is a test Q charge. There is no, don't do that. There is a test Q charge Q over here, and the distance between them, suppose x is the distance. Okay, now let's write the credentials over here. It will repel each other, then it will try to move in this direction with distance dr over here. Suppose there are 2 points over here. This is point B and this is point A. So what will be the distance between here? Let the distance between test charge and this B is RB. Okay, and between this and RA, then this is what? RA. Now everything cleared? It will try to move in this direction, because if it has to move into the electric field, then it has to move from that test charge towards the point B. So let's write all the things what we have drawn over here, because writing is needed. Okay, so let's write at distance x, electric field E is how much? 1 upon 4 pi epsilon Q upon x square, because instead of r what you have got? The total distance, that is x. So you will write Q upon x square. Now a force is being applied, because if that charge Q is placed in the electric field, then it will experience a force into it, and it has to move into the opposite direction. There must be a force. F is equal to what? Minus QE. So let's write that. If a charge Q is placed in the electric field, then it will experience a force. In the opposite direction, that is how much?
F is equal to what here? F is equal to what? Minus QE. F is equal to, write this Q as it is, okay, or better you can write this as bigger Q. Okay, then it will be suitable to put the value over here. Let's put the value over here. Q by 4 pi epsilon x square. So what we have got? F is equal to Q minus Q into Q by 4 pi epsilon x square. That's what you have got, isn't it? Now, if it is displaced by dx from here to here, suppose this is what dx. If charge q has displaced, from its position, dx, that is small displacement, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर उसका होता है dx, then you will write what dx. okay, now instead of that उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? then work done, that is what dw. तो वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपका कितना है? q by 4 pi epsilon x square into what? dx. Force into displacement, dx is the small displacement over there, so ये वो आपकी वैल्यू हो गया. तो वर्क डन कहां से कहां कर रहा है? इट इज मूविंग फ्रॉम b to a. so what you will write? b to a. it is moving from b to a. so let's write that वर्क डन कहां से कहां? b to a. वर्क डन का वैल्यू कितना है? माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब जो कांस्टेंट टर्म्स है जैसे q 4 पाई एप्सिलॉन, इन सबको हम क्या बाहर रख सकते हैं? अब किसके बाहर रखना है वो हम आपको बता रहे हैं. इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज आपने यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कर dx, फिर यहां से कितना करेंगे? dx 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 dx, और सारे dx को क्या करेंगे आप? Isn't it? So adding is what? integration. कहां से कहां ले जा रहे हैं? From lower limit to upper limit. तो lower कितना है? b, upper कितना है? a. So अंदर क्या बचा आपका? dx by x square. That what you have got. अब ये इस x square को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो you will get what? लिखते हैं. x step तो यहाँ पे हो ही जाएगा, I guess. Is it visible? Look over here. b to a minus q by 4 pi epsilon b to a. इसको ऊपर ले जाएंगे तो you will get minus x to the power inverse 2 dx. इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ 2 का तो आपको आता है. ये जो चीज आप लोगों ने लिखी है इसको लिख ले, हम यहाँ बातें करते हैं. ओके, लेट्स डू इट ओवर हियर. यहां तक तो लिख लिया होगा आपने. Now let's move ahead. That's what you have got. ठीक है. Work done from B to A minus Q 4 pi epsilon, और अंदर में what you have got x inverse, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 by -2 + 1 you will get. So what you will get? यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो -1 by -1 dx हो जाएगा. So let's put over here
दैट यू विल गेट, इजंट इट? इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1/x, कहां से कहां, b2a, b2a, क्लियर? नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, अब सारे वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे, ठीक से जाएगा। लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर, b2a minus q by 4 pi epsilon 1 upon RA minus RB, क्लियर है? नीचे गलत कर दो, इस q को इधर ले आएंगे, इस स्मॉल q को अगर उधर लेकर जाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, WB2A by q is equal to minus q by 4 pi epsilon and 1 upon RA minus 1 upon RB, सिंपल है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, V का A टू फ्रॉम B टू A, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, BA माइनस BB। इसको थोड़ा समझाते हैं कैसे। अगर ये पॉइंट B टू A जा रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस B, बिकॉज यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस कितना, मान लीजिए 30 से 40 जा रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10, मतलब 40 माइनस 30, so means what, B minus A, तो यहाँ पे sorry A minus B, so instead of this you will write what, VA minus VB, and you will get minus Q by 4 pi epsilon 1 upon RA minus 1 upon RB। है ये सिर्फ यहीं तक, फिर इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है। कि मान लेते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, पहले ये बताएं कि ये क्लियर है ना, तो इंटीग्रेशन अराउंड देयर कैलकुलेशन, ये टेस्ट चार्ज से दूर, मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये जो टेस्ट चार्ज है वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से उसको लाना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम व्हाट, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कुछ याद है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, 0। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब वहां पे क्या नहीं है, चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कहां पे, इंफिनिटी पे 0 होता है, मतलब अगर इस B पॉइंट को अगर आप कहां ले गए हैं, इंफिनिटी पे, मतलब यहाँ पे इस टर्म पे देखें, यहाँ पे इस टर्म को देखेंगे, VA minus VB is equal to minus Q by 4 pi epsilon 1 upon RA minus 1 upon RB, ये होगा, isn't it? और जहां पे आपका VB का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0, because ये VB is equal to what, इंफिनिटी, तो VB का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो व्हाट यू विल गेट, VA minus Q upon 4 pi epsilon is equal to what, 1 upon RA, और ये क्या हो जाएगा, 1 upon infinity, और 1 upon infinity का वैल्यू कितना होगा, 0, so VA Q upon 4 pi epsilon, you will get what, 1 upon RA, that's it, ये मिलेगा। so overall you will get what, P is equal to minus 4 pi epsilon R, ठीक है, राइट ना, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभी पूछी जाती है कि अगर आपका जो टेस्ट चार्ज है वो अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्लियर है।
तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे। वैसे इट्स नॉट कंप्लीटेड येट, वी हैव टू मूव अहेड, यहाँ से इसे कैरी ऑन करना है। ओके, मूविंग अहेड वी हैड दिस वैल्यू, इस वैल्यू को फिर से लिखते हैं। वी गॉट VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस Q4 बाई एप्सिलॉन, Q because ये Q तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, 1/RA माइनस 1/R। इसे देखिए, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले VB2A के लिए एक और फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया था, EDR शुरू में, उसे यहाँ पुट करते माइनस EDR। और वो माइनस EDR क्या है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस EDR cos थीटा, where the value of theta is got 0 degree। Understood? तो बस यही भी करना है, बस उसको लाइन इंटीग्रल पुट ऑन करना है, और कहां से कहां, B to A, that's it, clear? Now moving ahead, ये तो रहा स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल है कुछ ऐसा, और ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट B है, इस केस में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये लेंथ कितना है, L, मान लेते हैं दैट लेंथ इज व्हाट, L। सो फॉर दिस मान लेते हैं आप इसे क्या लेंगे, DL, इसे क्या लेंगे, DL, इसे क्या लेंगे, DL, इसे क्या लेंगे, DL, और ये क्या बन जाएगा, थीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम याद है कैसे बनाते हैं आप लोग? अगर ये इसका थीटा है तो ये हो जाएगा आपका DL cos थीटा, और ये बन जाएगा इसका क्या, DL sin थीटा। If you remember, so you will get what here, EDL cos theta। भाई वक्र के लिए पर्टिकुलर VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस EDL cos थीटा, सिंपल है। VA माइनस VB ये आप पुट ऑन करेंगे, दैट इज वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू व्हाट, माइनस EDL cos थीटा closed integral B to A, that is closed integral A to B, A to B you will get minus EDL, if you write it in its vector form B to A। इसे क्या पता चल रहा है, देखिए ये और ये सेम है, ये और EDS cos थीटा जो हम लोगों ने EDR cos थीटा जो पहले बनाया वो भी सेम है, isn't it? डिफरेंस क्या है, यहां पे देखिए कि ये अगर ये ऐसे मूव करे तो भी इसका वैल्यू, ये ऐसे मूव करे तो भी इसका वैल्यू वही। सो व्हाट इज नॉट चेंजिंग, इट द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, द पोजीशन A and B is not changing, what changing is the path। एंड वो तो किससे इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ओनली। हमको स्कूल जाना है अपने घर से, अब हमको स्कूल ट्रेन पकड़ के जाना है, बस पकड़ के जाना है, सुदामडी होके जाना है, या पाताडी के रोड से जाना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। आई वांट टू गो टू स्कूल, तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। क्लियर है? तो ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं, that it is independent, sorry it is dependent upon position not path। लिख ले कहीं पे, स्पेस तो मेरा है नहीं, it is independent of path and dependent upon the position। क्लियर है? चलिए आज के लिए आई गेस इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी तो हम लोगों ने जनरल पॉइंट के बारे में बात करी है, उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक जनरल पॉइंट बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करेंगे, एक्सेल पॉइंट पे बात करेंगे, और उससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।